welcome to the session, everyone. And let's start for the session. I welcome all of you and our speaker, Pawan Chaudhary, for the day. So, this event is mainly by our cybersecurity circle. And as a DSC lead, I'm proud to tell that these people have worked really hard for this. And we hope this session give you more insight about information gathering and all of the practical approach that they ought to provide you. So, next. So today's agenda would be told by our speaker mainly to you about all the information gathering, scan, finding vulnerabilities, exploitation, and then you will have a Q&A. So, talking about the speaker, I welcome Chaudhary Pawan Sahlot, cybersecurity researcher and penetration tester, Gurugram Police Cyber Cell intern, Noida Police Cyber Cell intern, and founder of Mission IT Education. So we hope this session provide you with a lot of knowledge. I welcome you to the session and the stage is all yours. Thank you. So you can start with your session now. Yes. I'm audible? Yeah. Okay, thank you very much, all the team of DSC, IGTUW. And in today's session, we learn about all about the practical concept of ethical hacking. So we start, just I connect my machine. Wait a minute. Yeah, we got it. Okay, good. Okay, so first we start with cyber security. So cyber security basically एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर काफी चीजों का एक कोलैब है और एक मिक्सचर है. सो बेसिकली हम इथिकल हैकिंग की बात करते हैं या किसी भी डोमेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी वहां पे एक मेन रोल प्ले करता है. तो इसी के अंदर हमारा अलग अलग चीजें आती है, इसी के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर. उसी में से इथिकल हैकिंग वन ऑफ द वन डोमेन. Okay, so basically main cyber security is that we secure something from different kinds of attackers or intrusion detectors basically that engage to get the unauthorized access from particular thing. So basically cyber security का main motive हो गया हमारा, that is to secure from the confidentiality, to provide the integrity and that availability, that called CIA. You also heard about the CIA triangle. So that consists under the cyber security. अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर अलग अलग डोमेन होने की वजह से अलग अलग इनके फील्ड हो गए हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन penetration security. Okay, there is network security, and there is another thing that is kind of API pen testing. So lots of things come day by day. So it consists of mainly different domains. So अगर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग domains है, more than 10 domains are in cyber security. So first one is your network security. Network security means we secure the network from different kind of intruders or unwanted users or kind of hackers. So that consists under the network security. आफ्टर दैट देयर इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी. अब कोई भी चीज हो, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर उस चीज को रन करते हैं, उस चीज को काइंड ऑफ मैनेज करते हैं या उस चीज को शो करते हैं, तो उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं. देयर इज वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और देयर इज ए नॉर्मल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म. तो उसी के बेस पे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं उस चीज में. तो इसमें क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन है उसको हम अटैक होने से या डिफरेंट अटैकर से या फिर किसी ऐसी लूप होल या ऐसी वल्नरेबिलिटीज से हम सिक्योर करेंगे. सो दैट कंसिस्ट अंडर द योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी. और इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कि ये इस चीज के लिए ये इसके मिटिगेशन किया जा सकते नहीं, इसको हम काइंड ऑफ सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं. आफ्टर दैट देयर इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी.
एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं, किसी बेस पे कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, या हम कोई काइंड ऑफ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें कोई ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है, काइंड ऑफ दिस लूप होल इन पर्टिकुलर कंपनी, और काइंड ऑफ देर इज वल्नरेबिलिटी इन पर्टिकुलर कंपनी। सो किस बेस में हो सकती है वो, कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज में भी हो सकती है, ड्यू टू द सोशल इंजीनियरिंग हम उसको ट्रिगर कर सकते हैं। सेम ऐसे आपका एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मेन रोल होता है। इसमें हम रिमोटली एक्सेस करते हैं किसी कंपनी के नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क इन द सेंस हम फिजिकली भी एक्सेस कर सकते हैं और वर्चुअली भी कर सकते हैं। वर्चुअली देर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक एप्लीकेशन और काइंड ऑफ वेबसाइट्स और देयर वर्चुअल एरियाज, तो उसमें हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। दैट आर द एंड पॉइंट सिक्योरिटी। आफ्टर दैट देयर इज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के अंदर हम उसकी रेगुलर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, और उनके जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल, उनके मैनेजमेंट की डिटेल, ये सारी चीजें उसके अंदर आते हैं। दैट इज डेटा सिक्योरिटी। वी सिक्योर द डेटा विद आवर CIA trade, that is called confidentiality, integrity and availability. And when we lose the CIA concept, then it may be the chance of data leakage, that is called data breach. So ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा सिक्योरिटी के अंदर। आफ्टर दैट देयर इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये चीजें हमें तब देखने को मिलती है जब हम किसी बड़े लेवल पे जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी रेप्यूटेड डेसिग्नेशन पे जाते हैं, तो हमें ये चीज को मैनेज करना पड़ता है। सो इसके अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर जानते हैं कि एग्जैक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है और वो किन किन एसेट्स को फॉलो करते हैं। एसेट्स इन द सेंस वी कैन कॉल इट डिजिटल एसेट और एज वेल एज फिजिकल एसेट। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर उसका मेन रोल प्ले करता है। इसके बाद there is a database and infrastructure security. ये भी एक हमारा basically you heard about the database management system that is called DBMS और RDBMS. So उसके अंदर हम डेटा मैनेज करते हैं, डेटा को वहाँ पे प्रिजर्व करते हैं और फिजिकल उसका मतलब रिसेंट यूज करने के लिए उसको हम बाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर API के साथ या किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के साथ। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उसी डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक जो आजकल सबसे कॉमन है दैट इज कॉल्ड क्लाउड सिक्योरिटी। एज यू हर्ड दैट यू यूज द गूगल ड्राइव और काइंड ऑफ वन ड्राइव और मेगा ड्राइव और डीगू, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइव आर देयर। सो इस केस में क्या होता है, ये भी जो क्लाउड होता है यहाँ पे आजकल हम अपना सारा डेटा रखते हैं। सो हम सोचते हैं कि हमारी प्राइवेसी रिवील नहीं होगी, हम यहाँ पे अपना डेटा रख सकते हैं। बाय द वे हमारे लैपटॉप या फोन के अंदर तो कोई भी एक्सेस करके चुरा सकता है, बट ये हमारी एक मिसकंसेप्शन है। बेसिकली क्लाउड भी सिक्योर नहीं है आजकल, क्योंकि यू नो दैट गूगल ऑल्सो कैप्चर अवर ऑल द डेटा। गूगल हमारा डेटा चोरी करता है इन द सेंस ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैशे मेमोरी और काइंड ऑफ फोटोज, लोकेशन, मेटा डेटा, लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर। सो इस केस में हम क्लाउड के अंदर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे डोमेन थे जहां पे ये साइबर सिक्योरिटी रोल प्ले करता है। सो देयर आर मोर चैलेंजेस। देयर इज आल्सो काइंड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैकिंग, देयर इज आल्सो IoT हैकिंग। सो हैकिंग फील्ड के अंदर जहां जहां चीजें नई नई बन रही है वहां पे हैकिंग का एक वहां पे एक बहुत बड़ा स्रोत है। काइंड ऑफ देयर आर काइंड ऑफ जो हैकर्स हैं वो हर चीज को कवर कर चुके हैं। सिक्योरिटी के अंदर कोई भी चीज है उसको हैकर कवर कर चुके हैं। देयर इज आल्सो एलेक्सा भी हैक हो चुका है, इसके अलावा गूगल भी ऑलरेडी हैक हो चुका है, या यूट्यूब भी हैक हो चुका है। तो देयर इज काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैन कॉल दैट एवरीथिंग इज हैक्ड इन टुडेज जनरेशन। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, दैट्स अ लूप होल्स, दैट आर द वल्नरेबिलिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहां से चीजें हमें मिलती है और क्या इसका सबसे बड़ा कारण होता है, रीजन क्या होता है। सो ये सारी चीजें कवर होती है। दैट्स कंसिस्ट अवर सिक्योरिटी पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। आफ्टर दैट देयर इज मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर हम सेल फोन्स को सिक्योर करना, PDS पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो डिवाइसेस होती है उनको सिक्योर करना, देयर आर टैबलेट्स, और ये सारे मतलब इन्वॉल्व करके चलते हैं हम। तो ये सारे मोबाइल सिक्योरिटी का पार्ट होता है, बिकॉज मोबाइल के अंदर भी कहीं ना कहीं लिनक्स का कर्नल वर्क करता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की और डिवाइसेस की, तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नेस्कॉम और अदर सिक्योरिटी एसोसिएशंस, उसके हिसाब से बोला जाता है कि जो हमारे विंडोज है उसके अंदर सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी थी और अभी भी है। बेसिकली विंडोज 7 को अभी रिसेंटली उसकी सर्विसेज को डिग्रेड कर दिया गया है, उनकी सर्विसेज बंद हो चुकी है। द रीजन इज दैट देयर आर टू मच वल्नरेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर
ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई दे डिग्रेड द सर्विस, और उन्होंने इसके पैचेस भी स्टॉप कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा रीजन होता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वल्नरेबिलिटी का होना। तो आप देखते हो कि कोई भी फोन इजिली हैक हो जाता है ड्यू टू द काइंड ऑफ पेलोड्स और काइंड ऑफ मेटास्प्लॉइट वल्नरेबिलिटी, मेटास्प्लॉइट टूल, किसी से भी मतलब हैक हो सकती है चीजें। तो उसके सबसे बड़ा रीजन है उसके अंदर उस वल्नरेबिलिटी का होना। और ये वल्नरेबिलिटी कैसे मिलेगी, कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इज डिसास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बड़ा डेटा ब्रीच को सोल्व करती है तो देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल आर देयर आर इन्वेस्टिगेटर्स और देर आर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और इथिकल हैकर्स। सो ये क्या काम करते हैं, उस चीज को ब्रीच कैसे हुई और क्या रीजन था उसके पीछे, देर इज ए नेचुरल डिसास्टर और काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो और काइंड ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, क्या मतलब उस डेटा को ब्रीच करने में किसका हाथ था। तो ये सब होता है हमारे डिसास्टर रिकवरी के अंदर। वी कैन कॉल इट इंसिडेंट हैंडलिंग रेस्पॉन्स टीम, इंसिडेंट हैंडलिंग रेस्पॉन्स टीम, IHRT, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट हैंडलिंग रेस्पॉन्स टीम। सो ये चीजें सारी हमारी साइबर सिक्योरिटी को कवर करती है। तब ये सारे डोमेन को आप कवर कर ले तो देन यू कैन कॉल इट वी वर्क इन द डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इथिकल हैकिंग। Okay, so hacking, you know that hacking is the kind of illegal way to get unauthorized access of particular person, but ethical hacking is the way when we got permission from particular user or particular organization or particular thing. Okay, so ये हमारा ethical hacking part होता है। basically ethical का मतलब होता है legal और जो हैकिंग होता है इलीगल। ओके, सो इथिकल हैकिंग की वैल्यू इसलिए ज्यादा है बिकॉज every person want to secure their data, every person want to secure their website, everyone want to secure their infrastructure, so that's the main reason to do ethical hacking। और आज के टाइम में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, यू नो DCSI also take initiative, you know NASSCOM also take initiative, mygov.in, that's the government website, take initiative, Gurugram police also take initiative, Noida police also take initiative, more than 50 plus police are giving their internship to provide a kind of users to secure their domains or provide awareness. So that's the main thing, that's the main thing. So because everyone want to secure their infrastructure, everyone to secure their personal things, so that's why security is a major security has major role। okay, अब इसके अंदर अलग अलग फेसेस होते हैं। अगर हम बात करें, देखो जब हम स्कूल से, जब बचपन से हम जब जाते हैं KG क्लास में, नर्सरी में, देन इसके बाद वी गो टू द फर्स्ट क्लास, देन इसके बाद हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये हमारे फेसेस हैं। दैट्स आर द फेसेस टू कंप्लीट अवर जर्नी ऑफ स्कूल स्टडीज। ऐसे ही हमारे फेसेस होते हैं इथिकल हैकिंग, वी कैन कॉल इट स्टेप्स ऑफ इथिकल हैकिंग। so there are multiple steps in ethical hacking, but we convert it into स्मॉल स्टेप्स। इसको हम स्मॉल स्टेप बोल सकते हैं। अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट करूं या मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो ये बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, बट इसको छोटे वे में रखा गया है, इनका एक पर्टिकुलर यूज रखा गया है। सो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निसेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं, हम इसको फुट प्रिंटिंग भी बोलते हैं। देन इसके बाद सेकंड फेज इज स्कैनिंग। स्कैनिंग, अब पर्टिकुलर जो चीज हमने फाइंड आउट की उसके ऊपर स्कैन करना, उसके ऊपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में पता लगाना, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी पता लगाना कि कौन सा पोर्ट वल्नरेबल है, कौन सा पोर्ट ओपन है। सो दैट्स कंसिस्टेंट अंडर आवर स्कैनिंग पार्ट। इसके बाद आता है हमारा गेनिंग एक्सेस। अब हमने वल्नरेबिलिटी का तो पता लगा लिया, अब हम उसके अंदर एक्सेस कैसे लें, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर उस वल्नरेबिलिटी को चेकआउट करना पड़ेगा, वो कितनी डेंजरस है, कितनी क्रिटिकल है हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमें एक्सेस मिल गया, एक्सेस काइंड ऑफ हमने उस वेबसाइट के अंदर, हमने उस डोमेन के अंदर, हमने उस API के अंदर, हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी अवेलेबिलिटी मौजूद करा दी। अवेलेबिलिटी काइंड ऑफ हमने अपना एक बैकडोर तैयार कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय बैकडोर? बैकडोर इज काइंड ऑफ अनदर डोर व्हिच हैव अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक ऐसा डोर जो आपका नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपने उसको अनऑथराइज्डली एक्सेस करा के उसके अंदर पुट करा दिया। फॉर एग्जांपल, you have home, but you have only one door, you don't know that there is also other door, kind of you have windows, so anyone can come with window from window। कोई भी आपकी विंडो से आ सकता है, वो चोर भी हो सकता है, वो कोई इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, या वो कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एनीथिंग। सो यही एक ऐसा तैयार किया जाता है डोर, बैक डोर, दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ एडवांस लेवल वायरस, वी कैन कॉल्ड इट मालवेयर। सो
ये चीजें यूज की जाती है आपका एक्सेस लेने के लिए। देन इसके बाद उसको मेंटेन कराना, उस एक्सेस को, मींस जो आपने बैकडोर तैयार किया है कहीं ना कहीं वो पैच करने के बाद कहीं वो रिमूव तो नहीं हो गया है, तो उस चीज के लिए उसका मेंटेनिंग एक्सेस, दैट इज कॉल्ड, वी कैन मेंटेन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ पेलोड्स, दैट काइंड ऑफ persistent पेलोड, इनका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी डोमेन से नहीं है, कोई एंड्रॉइड डेवलपर है, हो सकता है कोई रिसर्च डेवलपमेंट फील्ड से है, तो उस केस में ये चीजें आपकी नॉलेज पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आफ्टर दैट देयर इज क्लियरिंग ट्रैक्स। अब हमने चीजें की, अब कहीं ना कहीं अब हमने वहां पे पता लगा कि भाई ये तो मेरे आईपी एड्रेस तो फ्रॉम दिल्ली और हरियाणा, सो एनीवन कैन ट्रैक अस, सो हमें कोई ट्रैक कर सकता है, हमें ट्रेस कर सकता है और हमारे फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल करके वो हमें कैप्चर कर सकता है। बट हम इथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो हम इलीगल नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं ट्रैक्स तो आपके वहां पे मतलब ऐड हो जाते हैं, बन जाते हैं आपके ट्रैक्स, तो उनको सोल्व करने के लिए हम वहां से बैकडोर्स निकालेंगे, वहां ऐसी चीजों को पुट करेंगे कि वहां से आपके ट्रैक दिखे ना, सर्वर में आपकी इंफॉर्मेशन ना जाए। आप अपना आइडेंटिटी हाइड करने के लिए आप वीपीएन यूज करोगे, आप टोर यूज करोगे। सो दैट्स आर द स्टेप टू क्लियर द ट्रैक ऑफ पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर वेबसाइट और डोमेन। Okay, after that you can use the reporting methodology. So reporting methodology आपका penetration testing का पार्ट है बेसिकली। So penetration testing के अंदर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है पर्टिकुलर डोमेन को, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जहां से आपको ये सारा जो आपने स्टेप आउट किया इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जा सके और उसका जो भी आपका क्राइटेरिया होता है उसको सॉल्व किया जा सके। और अगर आपको ये मतलब इजिली समझना है तो इसके कॉन्सेप्ट में हम बग बाउंटी को ले सकते हैं। बग बाउंटी का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या डोमेन के अंदर हम बग निकालते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उस रिपोर्ट कितनी क्रिटिकल थी, कितनी डेंजरस थी और क्या उसकी प्रायोरिटी थी, P1 P2 P3 P4 P5, तो ये प्रायोरिटी होती है। अगर वो P1 है तो उस बेस पे वो आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, आपको अवार्ड्स देते हैं, इवन आपको हॉल ऑफ फेम भी मिल जाता है। सो ये ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज को। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के केस में आपको कंप्लीट मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ती है। यू कैन यूज द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट कि कल अपने ऊपर ये बात ना आए, कल अपने ऊपर कोई अपने ऊपर केस ना लगा सके। सो दैट्स आर द मेथोडोलॉजी यूज इन दैट पर्टिकुलर फेसेस ऑफ इथिकल हैकिंग। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, अगर मैं इसको समझाने लगूं तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ थिंग, बट माय मेन थिंग इज दैट प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी इजिली कैसे कर सकता है, वेदर इट इज फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी डोमेन और नॉट। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपने सुना होगा बहुत नाम, रेकॉन करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, फुट प्रिंटिंग करना। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कैसे करते हैं, क्या होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है दैट्स द पावर। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी पावर है। बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन है तो यू हैव एवरीथिंग। अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी, सो यू लॉस योर क्रेडेंशियल, यू लॉस योर वैल्यूबिलिटी, यू लॉस योर काइंड ऑफ प्रेजेंस। सो इस केस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपकी इस समय बहुत बड़ी पावर है। सो इस पावर को इस्तेमाल आप कैसे करोगे, इस पावर का आप यूज कैसे करोगे, ये सारा आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। सो इथिकल हैकिंग में इंफॉर्मेशन गैदरिंग को प्रायोरिटी फर्स्ट दी गई है, बिकॉज सपोज मेरे को कोई टारगेट मिला। अब सबसे पहले आपको टारगेट फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप किस टारगेट के ऊपर वो करें, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे कैसे हम टारगेट फाइंड आउट करें, क्या कर सकते हैं। सो ये जो सिनेरियो है बिल्कुल ट्रू है, मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन जो निकालनी है वो किसी टारगेट को लेके ही निकालनी है। ओके, सो देर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और आज के समय में बात करें हम तो देर आर लोट्स ऑफ स्टेप टू फाइंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कैसे हम कर सकते हैं रेकॉन किसी के बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल, just wait, I just share my screen to demonstrate some steps with you. Just wait a minute. So basically information gathering या recon करने के काफी step हैं। You can use Google Docs, you can use Yes, fine. okay, yes. So first thing is that information gathering. So how we can find information of particular user or kind of a domain. So just wait. So I just mention here information gathering methodology. So you can write down this step if you want to know more about ethical hacking. Okay, so first thing is that you can use the Google Docs. That's a very useful thing to find lots of information about particular website or domain or particular user. Okay, Google Docs. What do you mean by Google Docs? Docs are kind of advanced level research
to find out a particular keyword and got lots of information about that particular keyword, whether it is insight on particular website or whether it indexed on server, Google servers. So basically that are the Google Docs. After that, you can use Google Docs are like in title, in URL. Now, how we can use in our domain, how we can find out this information by particular usage. So first we go to our particular browser. Okay, so this is the our normal browser. You can see this. So this is our Google browser. Okay, so first we find out Google. So I just write down here. Wait a minute. So basically, I discuss about the Google Docs. What are Google Docs and how we can use as a hacking. So basically, Google Docs is also consist under the Google hacking database. That is called GHDBS. GHDBS. That is called Google hacking database. Uh, GHDBS. We can called into exploit DB also. So when I open it in exploit DB, so it shows that there is Google hacking database. It consists of many kind of Google Docs. So how can we find it? So see this, these are the Google hacking database and also called GHDB. So when click here, so it shows that Google hacking database. So it use the in title or kind of this thing. From this thing, we can find out particular vulnerability in this website, or we find out particular uh, thing to attack on particular domain. So if I put this thing here, so I got the login panel of different website. अब जैसे ये मैंने गूगल हैकिंग डेटाबेस के अंदर ये मैंने चीज कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे गूगल डॉक्स यूज हो रहा है. द फर्स्ट थिंग इज दैट साइट पासवर्ड इन टाइटल लॉगिन. So that's are the old methodology जो hackers अक्सर यूज करते हैं. Now I tell you the new methodology how we can find. अगर हमें पता नहीं कि गूगल डेटाबेस का यूज कैसे करना है, ये तो आपको गूगल पे मिल जाएगा इजिली, बट अब आपको एक एडवांस लेवल पे चेक करनी चीजें कि मेरे को एग्जैक्ट चीजें मिले और मेरे को डॉक्स के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो देयर इज वेबसाइट दैट इज कॉल्ड filechef.com. Okay, when you open this website, तो this is open directory made by the hackers. So इसके अंदर क्या है, आपको जो चीज चाहिए यहाँ पे पुट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू नो अबाउट द हैकिंग ई बुक्स. ओके, अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि वो क्या चीज है. सो सी दिस, देर आर डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, एप्लीकेशन, वीडियो, ऑल इमेजेस. सो व्हेन आई क्लिक हियर, so I got this kind of thing. So what is this? So this is wait a minute, I just increase my size of screen. So this is the real docs that used behind that particular searching. So जब हमने यहाँ पे सर्च किया hacking e-books, तो देखो यहाँ पे MKV, that's the format of video. There is another format of MP4. There is in URL जो कि हमने यूज किया था. अब इसमें फॉर्मेट है, JSP है, PL है, PHP है, HTML है, ASP है. Okay, so these are the format of particular extension. सो SHTML है जो कि हम यूज करते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर. अगर वल्नरेबिलिटी है तो उसके ओपन कैमरास को चेक करने के लिए, दैट इज SHTML. इसके बाद इन टाइटल है कि इन टाइटल में हमें इंडेक्स निकालना है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का. सो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाना है फाइल शेप पे. दैट इज द ऑटोमेशन मेथोडोलॉजी ऑफ गूगल डॉक्स. सो यहाँ पे आपको पुट करना है और आप यहाँ से उस एग्जैक्ट रिजल्ट को पता कर सकते हो. अब देखो मेरे को यहाँ पे वल्नरेबल वेबसाइट चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे वल्नरेबल, बिकॉज मेरे को एक्सप्लॉइट कराना है आपको, तो मेरे को वेबसाइट की भी नीड चाहिएगी. और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट पे अटैक करते हो, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट वेबसाइट और यू हैव प्रॉपर ऑथेंटिकेशन. आपके पास उस चीज का एक्सेस होना चाहिए. आप किसी भी वेबसाइट को डायरेक्ट
हैक नहीं कर सकते। अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो तो देयर इज आरवीडीपी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल वल्नरेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। ओके, सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक बीच में बॉन्ड बन चुका है, दैट इज कॉल्ड आरवीडीपी। ओके, कि आपने एक आपके पास रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक करने का। ओके ओके, यू कांट सी द बिग स्क्रीन, ओके ओके, नो वरी। सो अब देखिए, अब अगर सपोज आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेरे को हैकिंग सीखनी है, सेल्फ स्टडी करनी है हैकिंग के अंदर, तो हम कैसे चीजों को लर्न करें? सो दिस आर द वन मेथोडोलॉजी कि हम ये यूज कर सकते हैं गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करके। another is file step. When I click here, so I get into the index of particular website because it shows that there is index. Okay, और जब मैं इंडेक्स पे क्लिक करता हूं तो आई गोट डिफरेंट पीडीएफ देयर। सो ये सारी पीडीएफ उस वेबसाइट पे हैं जो कि हैकिंग के ऊपर बनी है, बट उसका कहीं ना कहीं क्रोलर गूगल ने चेकआउट कर लिया, तो उस क्रोलर के बेस पे हम ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे व्हेन आई क्लिक हियर, सो आई डाउनलोड द पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, so wait a minute, I host share my whole screen, then you got the complete idea. Okay, now see. Okay, when I click here, so you got the pop-up that's captured by from my IDM. So इसने पिक कर लिया, that is 13 MB फाइल ये हमें मिल गई। और यहाँ पे सपोज अब मेरे को और कुछ चीज चेक करनी है, ये इंडेक्स है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दैट आई इनटू द डायरेक्टरी ऑफ पर्टिकुलर वेब सर्वर। ओके, कौन सा सर्वर है? अपाचे का 2.4.38 सर्वर है, और ये कौन से पोर्ट पे चल रहा है? दैट इज 443, दैट इज द HTTPS पोर्ट। ओके, और ये इसका ये जो जहां पे वर्क कर रहा है इसका सर्वर। सो यू गॉट देयर इज वर्डप्रेस, देयर इज ई लर्निंग। when I click here, so I got the models of particular website, I got also magazine। और ये भी एक वल्नरेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइल पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी। बट इस केस में हम इसको वल्नरेबिलिटी नहीं बोल सकते, हो सकता है किसी ने ओपन कर रखा हो, बट ये किस वेबसाइट का हम जानेंगे। सो दैट्स द वेबसाइट, ये वेबसाइट है जहां पे ये चीजें सारी शेयर की गई है इसके बैकएंड में, जो इसका इंडेक्स पेज है उसके ऊपर। तो हम इस चीज को ऐसे भी सर्च कर सकते थे, इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, ये हमारे डॉक्स होते हैं, तो इन डॉक्स का इस्तेमाल करके, राइट। So that's the thing to find out about particular website. You can find out vulnerable websites also. तो अभी मैं आपको यहाँ चीज तो आपको अभी वो स्क्रीन मिल जाएगी। आई जस्ट ओपन माई सबलाइम। सो अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वल्नरेबल वेबसाइट चाहिए, तो जो वल्नरेबल है या जो हमारे पास ऑथेंटिसिटी है, जिन चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं, सो उनका हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम कुछ वेबसाइट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज माई वेबसाइट दैट इज कॉल्ड दैट इज hackin5minute.com। तो इनके हम अप्रोच करेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद हम एक जो अक्सर यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड vulnweb.com। Okay, after that you can use the test PHP, also the part of vulnweb। You can use another vulnweb website also, that demo test fire। तो ये इन वेबसाइट पे आप जब प्रैक्टिस करोगे, यू हैव एक्सेस, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे करते हो या किसी और पे करते हो, तो उस केस में हमें पता नहीं उस वेबसाइट के बारे में, तो सबसे पहले हमें उसका वल्नरेबिलिटी असेस करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा। अब इन वेबसाइट्स के बारे में हमें नॉलेज है, बिकॉज दीस आर ऑलरेडी टेस्ट फॉर मेड फॉर टेस्टिंग पर्पस। अनदर वेबसाइट दैट कंसिस्ट अंडर द CH मॉड्यूल, जो कि CH मॉड्यूल्स के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड certifiedhacker.com। ठीक है, अगर आपको और वेबसाइट चाहिए तो यू कैन गो टू द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाइक HackerOne और बगक्राउड इंटीग्रिटी। उस पर बहुत वेबसाइट है जो कि टेस्टिंग के लिए बताई जाती है कि आप इनको टेस्ट कर सकते हो। बट उस केस में क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसमें वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है, तो हमें उसको चेकआउट करना पड़ता है। उसके लिए हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बग हंटर्स के पास होती है, जो कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर्स के पास होती है। तो उस केस में आप कर सकते हो। ओके, सो ये हमारी वेबसाइट रहेंगी जिसको हम टारगेट करेंगे। ये हमारी वो वेबसाइट है जो कि नॉर्मली .com पे कमर्शियल वेबसाइट है। इंडिया के केस में आप कोई इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट भी ले सकते हो। अगर आपके पास, अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो, तो यू कैन रिपोर्ट ऑन NCIEPC, सो यू कैन रिपोर्ट देयर।
सो व्हाट इज एनसीआईपीसी, फर्स्ट इसके बारे में बता देता हूँ। अगर इस पे आप करते हो तो यू गोट अचीवमेंट्स और लॉट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट डोमेन। सो एनसीआईपीसी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इट्स नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। और ये वेबसाइट आपको रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट डोमेन के अंदर आपको बग मिलता है तो आपको एक अप्रिशिएशन दिया जाता है। इसमें आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, बिकॉज ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में सबसे ज्यादा बग होते हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो लूप होल्स होते हैं और लोग ज्यादातर रिसर्चर इस पे काम नहीं करते। उसका रीजन यही है, बिकॉज दे डोंट एनी काइंड ऑफ सिंगल पेनी। दैट्स वाई द रीजन जो लोग ज्यादातर हैकर वन और बग क्राउड पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। So how you can report that? So when you go there, so you got the documentation part. You can also report by their email ID also. So when you go there, so see this is the email ID of particular thing. You can report their help desk government, or also you got the contact area. ओके ये वो वाला पार्ट है जब हम पर्टिकुलर वेबसाइट को रिपोर्ट करते हैं, वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, देन कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे, तो आपका फिर इस पे करने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूसेज नहीं है। काफी डाउन लग रही है वेबसाइट, आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मालवेयर रिपोर्ट करना है आपको। मालवेयर के लिए आपको मालवेयर एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको वायरस सैनिटाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम जो मैंने बताया था आपको, वो इंसिडेंट हैंडल करती है, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद देयर इज वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर, कि आप वेबसाइट को कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। सो व्हेन आई डाउनलोड दिस थिंग, सो आई गोट ए पीडीएफ देयर। सो व्हेन आई ओपन दैट पीडीएफ, यू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी वी रिपोर्ट। तो हम उस वल्नरेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So see this is the NCIPC responsible disclosure program, kind of its form। और इसमें आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आई रिलेट्स विद मिशन आईटी एजुकेशन, और आई रिलेट्स विद इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, सो वी राइट डाउन हियर। इसके बाद देखो दैट्स आर द वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी होती है एक्सेस, दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एलएफआई लोकल फाइल इंक्लूजन जो हमारी है, एक्सएसआरएफ, ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। ठीक है, और यहाँ पे देखो एसक्यूएल इंजेक्शन वाली, क्लिक जैकिंग, इंफॉर्मेशन लीकेज जैसे मैंने भी आपको दिखाया। इसके बाद स्टैक ओवरफ्लो, इसके बाद हीप ओवरफ्लो, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, मेमोरी करप्शन। सो दिस आर द वल्नरेबिलिटी कैटेगरी। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको रिपोर्ट कर सकते हो, जो कि लीगल है। ठीक है, इसमें आप करोगे तो आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स आर मेथोडोलॉजी टू एग्जैक्टली फाइंड आउट अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, आगे राइट डाउन करते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट रहेंगे जिनके ऊपर करेंगे। अब हम एक ऐसी वेबसाइट लेते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल है, और काइंड ऑफ हम ऐसी बोल सकते हैं जिसमें मतलब बाय द वे अगर हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम पर्टिकुलर डोमेन को टेक ओवर कर सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, हम करेंगे नहीं, बस मैं आपको एक आइडिया दूंगा। सो दैट्स वेबसाइट इज एमआईटी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आई हैव गुड लिंक विद एमआईटी यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई आई राइट डाउन हियर mitedu.in, met.edu। ठीक है, यही रख लेते हैं। edu एक ऐसा डोमेन है जो एजुकेशनल डोमेन्स को शो करता है, जो भी एजुकेशनल चीजें होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उन चीजों के लिए। सो हम ये हमारे टारगेट वैल्यू रखेंगे। ओके, नाउ आई शो माय डेस्कटॉप स्क्रीन। सो मैंने काफी चीजें ओपन कर ली है, सो मैं आपको फिर से दोबारा वहीं पे लेके चलता हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। ओके, सो अब हम आ गए हैं फिर से वहीं पे। सो यहाँ पे देखिए, फेसेस ऑफ इथिकल हैकिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात कर रहे थे। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कई मेथोडोलॉजी होती है। ठीक है, हम गूगल हैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको GHDBS, गूगल हैकिंग डेटाबेस, एक्सप्लॉइट DB। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। टूल्स की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए NS लुकअप यूज कर सकते हैं, सर्वर की इंफॉर्मेशन निकालना, उस वेबसाइट की IP डिटेल निकालना। ठीक है, इसके बाद हु इज लुकअप कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये चीजें ली, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं थियोरेटिकल पार्ट को, देन हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ओके, सो हु इज लुकअप मींस कि उस एग्जैक्ट वेबसाइट की डिटेल निकालना। तो यहाँ पे आपको कई कैटेगरी मिलती है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखी है। तो इसमें फर्स्ट
फुटप्रिंटिंग, सेकंड वन इज स्कैनिंग एंड देन इनुमरेशन। फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में हम जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सके वो निकाल पाए। ओके इसके बाद उससे क्या होगा, जो हैकर होगा वो इंट्रूड करेगा उनके सिस्टम के साथ, उनकी सिक्योरिटी लेवल को चेक कर सके और वहां से इवन सोशल इंजीनियरिंग भी कर सके। ठीक है, आजकल सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा पार्ट हो गया है साइबर सिक्योरिटी में, बिकॉज मैनी पीपल्स आर डोंट अवेयर अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट। उनको पता ही नहीं कि सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, कैसे होता है, डबल वेरिफिकेशन क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या चीज है, कुछ नहीं पता उनको। तो सबसे बड़ा शिकार वही होते हैं। अभी रिसेंटली आपने ट्विटर का देखा हो, कितना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग स्कैम हुआ था बिटकॉइन को लेके। सो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, हर चीज की एक वैल्यू होती है। आप कितने सोशल इंजीनियर किस हिसाब से किसी को अपनी बातों में लगा सकते हो, कैसे उसको मनवा सकते हो, दैट्स आर द पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, बट हम उसको अभी नहीं लेने वाले यहाँ पे, बिकॉज वी डिस्कस अबाउट अवर प्रैक्टिकल अप्रोच। इसके बाद हम कर रहे हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होगा, आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, एक घर है, उस घर के अंदर एक एक दरवाजा है, उसके अंदर मल्टीपल खिड़कियां हैं। ठीक है, तो उन खिड़कियों से क्या हो सकता है, कोई वायरस भी आ सकता है, उस खिड़की के अंदर से चोर भी आ सकते हैं, उस खिड़की के अंदर से इंट्रूडर भी आ सकता है, बाहर से कोई स्नेक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है और आपको हार्म पहुंचा सकता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका इसमें आता है। जब वेबसाइट होती है तो वेबसाइट में कॉमन पोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड HTTP 80 पोर्ट, और अगर सिक्योर है तो उसमें HTTPS, दैट इज कॉल्ड 443 पोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, जब भी आपका पोर्ट ये कॉमन होता है, ओपन ही ओपन मिलेगा आपको हर वेबसाइट पे। अगर इसको क्लोज कर देंगे तो वो सर्विस जा ही नहीं पाएगी वेब सर्वर के पास और आपकी वेबसाइट रन नहीं करेगी। सो दैट्स द कॉमन पोर्ट। इसके अलावा क्या होता है, जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती, हम एक प्रोग्रामर होते हैं, हम एक डेवलपर होते हैं, तो हमें इतना पता होता है कि ये वेबसाइट का पोर्ट इससे चलेगा, इससे FTP होगा, फाइल ट्रांसफर इससे होंगी, ठीक है, SSH इससे चलेगा, इसके बाद SQL का यहाँ से रन होगा। तो हम उन पोर्ट को नॉर्मली क्या रख लेते हैं, उनको हम जैसे स्टार्टअप जैसे हमें मिलता है उसको डिफॉल्ट रख लेते हैं, तो हमें पता नहीं होता, बट हैकर उसी का बेनिफिट उठाते हैं। वो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपके पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कौन कौन से पोर्ट हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी वेबसाइट पे है, ठीक है, कौन से आपका नेटवर्क होस्ट है, ठीक है, कौन कौन सी, उस बेस पे चीजें का पता करके। अब क्या होता है, जब भी कोई पोर्ट आपका इंप्लीमेंट होता है तो उसके पीछे वीकनेस होती है। अगर आप मैं HTTPS की बात करूं तो उसके अंदर भी वीकनेस है, देयर इज SSL vulnerability there है, TLS vulnerability, that is called heart bleed vulnerability, जो कि अभी पैच आउट हुई है। तो इस केस में क्या होता है, इन पर्टिकुलर चीजों के पीछे vulnerability होती है। FTP खोल दिया तो उसमें FTP-D की vulnerability होगी, जिससे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं किसी सर्वर के ऊपर। ठीक है, वीक ऑथेंटिकेशन कि आपका HTTPS आपने रीडायरेक्ट किया बट वो आगे गया तो वहां पे पासवर्ड है ही नहीं, दैट इज अनप्रोटेक्टेड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। वीक इंक्रिप्शन, पैचेस नहीं है, मिस है उसके अंदर। सो ये सारा पार्ट आपका स्कैनिंग का आता है। ये सारा होने के बाद आपको वहां पे पर्टिकुलर डोमेन मिला, आपने वहां पे होस्ट पोर्ट मिले, देन आप एनुमरेट करते हो। एनुमरेट काइंड ऑफ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की उसका इस्तेमाल करके आप उसके डोमेन में घुसने की कोशिश करते हो, उसके उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स और पासवर्ड अटैक्स और काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस करके, मतलब कैसे ना कैसे करके उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करके आप एनुमरेट करते हो उसके नेटवर्क को। उसके IP टेबल्स फाइंड कर लिया आपने, उसके उसके नेटवर्क पता लगा लिए कैसे कैसे हैं सेम डोमेन के अंदर, तो आप एनुमरेशन की तरफ मूव ऑन हो जाते हो। ठीक है, अब ये मैं सारा आपको बताने से पहले एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे देता हूँ, कैसे हम ये चीजें कंटिन्यू करते हैं, कैसे होता है एक्चुअली। सो ये जो सेशन है ये बेसिकली सभी बिगनर्स के लिए है, कोई भी इसको आसानी से सीख सकता है, इसमें कोई टेक्निकल मैंने इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट यूज नहीं किया, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो मैं एडवांस भी बता सकता हूं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम बंद कर देते हैं। अब ये देखो, अब मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको तो सारी PDF है, मैंने एक PDF सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे XLSX कर देता, दैट इज कॉल्ड एक्सेल एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आपको एक्सेल्स की एक्सटेंशन मिल जाती। ठीक है, अब इस चीज को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ नाउ वी जस्ट ओपन, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ओपन वन ऑफ माई नॉन वेबसाइट, दैट इज tvsindia.com। ये वेबसाइट स्पोर्ट्स की वेबसाइट है। ओके, इसके अलावा मैं बग क्राउड की वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, दैट इज अ वेबसाइट ऑफ बग हंटिंग, जहां हम रिपोर्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं एक ओपन कर लेता हूँ MET यूनिवर्सिटी की, जिसको हम टारगेट लेंगे। ठीक है, MET.edu। तो ये मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन कर लिया। ठीक है, अब मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाना है, तो देखो टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाने के लिए आप दो दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज तो
आप कोई एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हो, या दूसरा आप अपनी नॉलेज यूज कर सकते हो। नॉलेज के बेस पे आपको बहुत चीजें जाननी पड़ेंगी, आपको सोर्स कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हो एग्जैक्टली exactly। अगर आपको वैल्यू है, मतलब आपको नॉलेज है अच्छी, तो आप जान पाओगे कि ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, ठीक है, इसमें CSS यूज हुआ है, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। इसके लिए एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज हुई है, एजेक्स यूज हुआ है। तो ये हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हम मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। बट आजकल के टाइम में एफर्ट्स वाली चीज खत्म हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑटोमेशन मेथोडोलॉजी। तो मैं सबसे पहले आपको मैनुअली बताता हूँ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी वेबसाइट के बारे में, क्योंकि जिस वेबसाइट के बारे में आपको पता लग गया तो वो आपके लिए इजी हो जाती है बग फाइंड करना या वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वेबसाइट का नाम, दैट इज द buildwith.com, buildwith.com। ये मैं सारे नोट्स में आपका मेंशन कर देता हूँ, आफ्टर दैट आई प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके, तो buildwith.com एक ऐसी वेबसाइट है जो किसी भी वेबसाइट के बारे में आप जान सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3-4 वेबसाइट खोली है। पहली चीज तो कई तरीके होते जानने के, जैसे ये वेबसाइट खुली, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका यहाँ से एक फोटो उठाया। ओके, कोई भी एक फोटो यहाँ से कॉपी कर लिया, जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक फोटो पिक कर लो, या आप कोई भी एक चीजें, हाँ यस, सोर्स कोड रिट्रीव होता है Ctrl+U से, और इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है Ctrl+I से। सपोज ये फोटो है, ठीक है, इसको मेरे को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको देखता हूँ पहले यहाँ इसमें कोई मेरे को डायरेक्ट पे वो मिल रहा है कि नहीं, तो नहीं मिला यहाँ पे मेरे को। अब एक तरीका तो ये है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ आप, ठीक है, व्यू सोर्स कोड में जाओगे तो आपको बहुत चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, और यहाँ पे जाके इस फोटो को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर दो। ओके, सो यू गॉट द थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं, मेरे को देखो यहाँ पे एक चीज मिली है, मैं इसको, एक मेरे को लिंक मिला है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली था क्या लिंक, ये मैंने सब नोट डाउन में लिखते जा रहा हूँ, फिर मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं ओपन करता हूँ एक नए उसके अंदर, ठीक है, URL में। तो जब आप इसको नए में ओपन करोगे तो ये आपको यू ब्रोक द इंटरनेट, दैट मीन्स ये डायरेक्टरी से बाहर है ये फोटो। तो हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला फोटो था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो ये फोटो है सपोज एक, ठीक है, यहाँ पे हम मार्शल आर्ट कर रहे हैं, तो ये फोटो हमारा एक वेब सर्वर पे अपलोड है, ठीक है। अब इस वेब सर्वर के पीछे से मैं ये चीज निकाल देता हूँ। ओके, सो ये कॉमन होता है डायरेक्टरी पाथ ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी का। जब हम एंटर करते हैं, अगर आपको यहाँ पे यू ब्रोक इंटरनेट है, इसका मतलब उन्होंने सिक्योर कर रखा है इस चीज को। बट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है WP कंटेंट अपलोड्स। ये एक ऐसी चीज है WP कंटेंट अपलोड्स, जो कि सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर होता है। वर्डप्रेस CMS है हमारा। ओके, स्मॉल स्क्रीन कर ली मैंने। ओके, ठीक है, तो ये वर्डप्रेस हमारा CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये हमें पता लग गई वेबसाइट वर्डप्रेस की। अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियल में वर्डप्रेस की है। ये तरीका था हमारा मैनुअल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ buildwith.com पे, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ओके, व्हेन आई क्लिक हिट एंटर लुकअप, तो देखो यहाँ पे आ गया वर्डप्रेस प्लगइन। इसके बाद गूगल API यूज कर रहा है, कॉन्टेक्ट फोन 7 यूज कर रहा है, ठीक है, विजुअल कंपोजर है, थीम पंच है, फेसबुक विजेट है, PHP यूज हो रही है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई। कौन सा वर्डप्रेस यूज कर रहा है, 4.9। तो 4.9 तो बहुत पुराना हो गया, तो इसमें इस हिसाब से इसके वल्नरेबिलिटी भी बहुत मिल जाएंगी इसको, ठीक है। तो इस बेस पे GoDaddy की होस्टिंग है, तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन, अपाचे सर्वर यूज हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई। ये था हमारा मैनुअल मेथोडोलॉजी। अब इसी चीज को मैं करना चाहता हूँ ऑटोमेशन के बेस पे। तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एक्सटेंशन का नाम है वेपलाइजर। ओके, कैसे डाउनलोड करते हैं, सी यहाँ पे हमें जाना है 3 डॉट्स के ऊपर, ठीक है। आई थिंक फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुकना। एक्चुअली रियल में होता ये है, जो इथिकल हैकिंग है, अगर हमें उसे एग्जैक्टली सीखना है, चीजों को समझना है, तो नॉर्मली एक वेबिनार और ये काइंड ऑफ वर्कशॉप के अंदर हम इजीली उस चीजों को समझ सकते हैं। बट दिस काइंड ऑफ वेबिनार, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, दैट द TVS इंडिया, जो हमारी वेबसाइट है। अब इसके अंदर मेरे को फाइंड आउट करना है कि वेबसाइट किसके ऊपर बनी है, क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है, मोर टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और एक्सटेंशन पे जाना है, ठीक है। जब एक्सटेंशन पे जाते हो तो आई हैव मल्टीपल एक्सटेंशन राइट नाउ, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन वेब स्टोर पे,
ओके, और यहाँ पे अपने को सर्च करना है वेपलाइजर, WAPP, और यहाँ पे आ जाएगा ALYZER, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। सो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी वेब टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कौन सा सर्वर इसके बैकएंड में काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो दैट्स गुड, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। मैं रीसेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, ओके, एंड वी गो टू देयर पार्ट। तो यहाँ पे 14 लिखा आ गया। व्हेन आई क्लिक हियर, तो आई सी दैट देयर इज CMS, दैट्स वर्डप्रेस, PHP वर्जन 7.1, फेसबुक का विजेट यूज हो रहा है, MySQL है बैकएंड में, ठीक है, वर्डप्रेस है और अपाचे सर्वर है। अब इसमें मैं जब क्लिक करता हूं तो मेरे को एग्जैक्ट इसके अंदर पता लग जाएगा कौन सा अपाचे सर्वर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अपाचे वेबसाइट आ गई, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, कौन कौन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। यूसेज कौन सी ट्रेंड में है, क्या डेमोग्राफिक्स है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। इसके अलावा कौन से अपाचे के अल्टरनेटिव वर्जन है, लिनक्स वो एनजिंक्स से आई है, ये सर्वर है, ओपन रेस्ट है। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ से पता लग गई। इसी बेस पे हम वल्नरेबिलिटी के लिए यूसेज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे एक और वेबसाइट खोलता हूं जिसपे हम अटैक करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट PHP। अब Sir, can you please देखो, zoom the screen? zoom, okay, okay, now got it. Got it? Yes, sir. Thank you. ओके, वेलकम। सो देखो यहाँ पे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप टेस्ट कर सकते हो, इस पे मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज है, बहुत है, ठीक है, टेस्टिंग के पर्पज से। अगर आपको लाइव वेबसाइट पे करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा VAPT की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेबलाइजर पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे एनजिक्स सर्वर आ गया, जहां पहले अपाचे था यहाँ एनजिक्स आ गया, ठीक है। ड्रीम वीवर से एडिट कर रखी है वेबसाइट, PHP के ऊपर रन हो रही है, ठीक है, इसका वर्जन आ गया। ये हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है। अब ये चीजों को हम यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया था, आपको अगर यहाँ पता लगा WP कंटेंट है, यहाँ पे अपलोड्स है, तो इसका मतलब ये है पार्ट हमारा वर्डप्रेस का। ये ऐसे बहुत वेबसाइट है जिसके अंदर ऐसे वल्नरेबिलिटी मिल जाएंगे आपको। जब मैं यहाँ पे अगर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करता हूं मैं, तो मेरे को ये वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। आप ये WP कंटेंट वाला पार्ट इस्तेमाल करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत वेबसाइट है जिनके अंदर ये फाइल पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी है। अब इसका मेन यूज क्या होता है, इस अगर जो ये हमें पाथ मिला है, अगर इस पे कोई आपको क्रिटिकल चीज मिल जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे, इसके अंदर बैकअप है, ठीक है, इसके बाद इसका फाइल मैनेजर है, तो ये चीजें आपको मिल जाती है तो क्रिटिकल होती है, ठीक है। कई केस में वो डेमो पर्पस के लिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे demos.winter.com लिखा हुआ है, तो ये डेमो पर्पस के लिए भी हो सकती है। तो जब मैं इसकी एग्जैक्ट वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये मेरे को वहीं पे रीडायरेक्ट कर जाएगी ये वेबसाइट। आई थिंक इन्होंने सिक्योर कर दी है। इसके बाद और देखते हैं, जैसे ये वेबसाइट है, इसके अंदर भी आपको ये एग्जैक्ट ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर पेरेंट डायरेक्टरी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बैकअप भी मिल गया मेरे को, FIG अपलोड्स भी मिल गया। इसी बेस पे कई लोग इस पे वेबसाइट डिफेस भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे को मिली, अब मैं इसको अगर डिफेस कर दूंगा तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी डाल सकता हूँ, यू आर हैक्ड, या अपना कोई पेज लगा दिया मैंने एडिट करके, उसमें फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी है, कॉमन है ये तो, ठीक है। देखो अब इन्होंने कहा रखा है, वी सप्लाई एंड इंप्लीमेंट द राइट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस। ये सिक्योरिटी डोमेन की वेबसाइट है, तो ऐसी चीजें हमें ये मिल जाती इजिली। अब अपने को ये वेबसाइट है, अब देखो इसमें कॉमन वेबसाइट देखते हैं हम, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ वेबसाइट के अंदर, तो मेरे को कॉमन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। बट जब आप क्लिक करते हो कहीं पे तो देखना ऊपर जो PHP के ऊपर वेबसाइट रन हो रही है, और जब मैं इसकी कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोस्टर पे देन व्हेन आई क्लिक हियर, सो यू सी देयर इज ए डोमेन। मैं अभी कॉपी करके इसको दिखाता हूं। तो इस डोमेन के अंदर आपको क्या मिला, तो इसके अंदर आपको एक लिस्ट प्रोडक्ट मिला .php क्वेश्चन मार्क, जो PHP क्वेश्चन मार्क आईडी जो हम वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वही कॉन्सेप्ट मिला। अगर मैं इसको गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करता हूं तो देखते हैं हमें क्या चीजें मिलती है, ठीक है। google.com, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉर्मली इन URL, ठीक है, क्वेश्चन मार्क PHP ID इक्वल टू, इसने इतना ही डाल देते हैं, बस इनफ है। तो देखो मल्टीपल वेबसाइट पे हमें चीजें मिल गई। अब हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और
यही वेबसाइट सेम कॉन्सेप्ट है जो इनके ऊपर जो इनका है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपको पीएचपी वाली वेबसाइट मिलती है, इसके अंदर हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं इजिली, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और इसको एक्सटेंसिव एक्सएमएल जो एसक्यूएल इंजेक्शन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैक बार, और मैनुअली भी कर सकते हैं, कैसे भी मतलब हम इस पे कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। देखो पहले चेक कैसे करते हैं इसके अंदर एसक्यूएल हो सकता है कि नहीं। तो किसी भी वेबसाइट के पीछे आप कोमा लगा दीजिए, ठीक है, जिसमें भी आपको पीएचपी के सिंटेक्स दिख रहे हैं। तो व्हेन यू पुट द कोमा देयर, यू गॉट द माई एसक्यूएल कनेक्ट, तो यहाँ पे हमें उसका फंक्शन मिल जाता है माई एसक्यूएल का, और इवन उसका पाथ भी निकल के आ जाता है कि यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो हम चेक कैसे करेंगे इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन होगा, तो पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर जान लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा इसका पार्ट। अब स्कैनिंग के अंदर मैंने आपको बताया पोर्ट्स कैसे चेक करेंगे। तो पोर्ट्स के केस में आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो जो कॉमनली यूज होता है दैट इज द काली लिनक्स, ओके। अनदर वन इज पैरेट, ठीक है, डेबियन है, पैरेट है, आर्च है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक आर्च, ठीक है। उबंटू है, उबंटू हम कॉमनली भी यूज करते हैं, बट इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग तब कह सकते हैं जब इसमें प्री बिल्ट टूल इसमें हो, बट इसमें होते नहीं है, हम इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ब्लैक आर्च है, वो ब्लैक आर्च थोड़ी हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको नॉर्मली 35 GB के अंदर इसका मिलेगा, और बेसिकली 15 GB के अंदर इसका VMware का मिलेगा। तो काफी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली आपको 2 to 3 के बीच में मिल जाएगा, पैरेट भी आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन किसी पे भी आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत हैं, और फॉर एग्जाम्पल है आप यूज कर सकते हो दैट इज साइबोर्ग, ठीक है, एडवांस लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद और भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो, बट इनफ है इतना, ठीक है। अगर आपको लगे कि और करना है तो आप और भी यूज कर सकते हो। नाउ अब हमें इंस्टॉलेशन वगैरह पार्ट तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा काली लिनक्स का इंटरफेस है। अब मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करना है इसको, ओके। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ऑन करके रखा था। सो ये हमारा इंटरफेस है, ये एक्चुअली मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, बैकएंड में आपके काली का आइकन होता है। तो ये हमारा वो इंटरफेस है जहाँ पे सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टूल्स हैं वो सारे यहाँ शो होंगे। तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस इन काली लिनक्स, लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मल्टीपल टूल हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के हैं, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के, डेटाबेस के हैं, पासवर्ड अटैक, वायरलेस अटैक, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटेशन, स्निफिंग, स्पूफिंग, रिपोर्टिंग, मल्टीपल। बट अपने को क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अवर फ्लो चलते हैं, ठीक है। स्कैनिंग, तो स्कैनिंग के अंदर हम वल्नरेबल पोर्ट्स निकालते हैं, ओके। तो कैसे पता लगाएंगे पोर्ट्स कौन सा इसके अंदर वल्नरेबल है, तो कॉमन मेथोडोलॉजी यूज करते हैं हम। सबसे पहले टर्मिनल के ऊपर जाते हैं, ओके। सो व्हेन यू गो टू द टर्मिनल, दिखाई दे रहा है सभी को? यस ओके, ओके, गुड। सो यहाँ पे अपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी डिटेल निकालनी है, तो एनएस लुकअप कर सकते हैं हम उसके आईपी एड्रेस के लिए। तो नॉर्मली सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आईपी या ये वेबसाइट एक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले कॉमन मेथोडोलॉजी पिंग met.edu, तो इसमें आपको आईपी मिल जाएगा उसका, ठीक है। आईपी एड्रेस मिल गया, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है बाद में अगर हम अटैक वगैरह करते हैं या फिर उसकी इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। तो ये पिंग हो रहा है, आईसीएमपी, ये भी आपका प्रोटोकॉल आईसीएमपी जो हमें मिला, रिप्लाई बैक जो मिला है, एमिटी यूनिवर्सिटी की, मतलब एक्टिव है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देते हैं। पिंग करने के बाद एनएस लुकअप कर सकते हो नॉर्मली, और भी स्कैन कर सकते हो इस बेस पे आप। एक टूल है इसमें एडवांस, दैट इज कॉल्ड डिग टूल। इसके बारे में आपको जानना है तो आप मैनुअली चेक कर सकते हो व्हाट इज डिग, ठीक है। तो जब आप मैनुअली चेक करोगे तो डीएनएस लुकअप यूटिलिटी टूल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे आपको सर्वर की नीड चाहिए होती है, और आपको एड्रेस वगैरह पता कर सकते हो इससे, कौन सा बैकएंड में ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है, क्या चीजें यूज हो रही है, सारा आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, ठीक है। तो डिग को यूज करते हैं हम, डिग met.edu,
ठीक है, तो हमें डिग इन्फॉर्मेशन निकाली, तो देखो हमें यहाँ पे पता लग गया। अब देखो जिसको नॉलेज होगी वो पता लगा लेगा कि क्या चीज है। तो यहाँ पे हमें AWS DNS मिला है, दैट इज कॉल्ड Amazon वेब सर्वर। ओके, तो हमें यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से MIT यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होस्ट हो रही है। तो यहाँ पे .org जो मैंने आपको दिखाया था वो वाली, ठीक है। इसके बाद UK से और .net और .com से अलग अलग सर्वर है इसके 4, दैट इज 1255 और 1586, 459 और 967, ये इसके सर्वर है। ठीक है, कितना टाइम लिया, कौन सी IP पे चला, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता लग जाएगी। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ, UDP का 18.12.80 ये प्रोटोकॉल यूज हुआ बैकएंड में। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर हमें और भी चीजें निकालनी है, सपोज हमें एनी इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो हम एनी सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, एनी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं इस बेस पे। मतलब जितनी भी डिटेल है इसकी, इसका SPF रिकॉर्ड निकालना है, इसका C नेम निकालना है, ये अलग अलग DNS के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हम ऐसे इस बेस पे निकाल सकते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे चलते हुए। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे एक टूल है दैट इज कॉल्ड DNS enum। ओके, जो DNS एनुमरेशन के लिए होता है, बैकएंड में आ गया उसका आई थिंक सो रिजल्ट met.edu। इसमें आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में, मतलब एक अच्छे कलरफुल लुक में चीजें मिलेंगी। इसमें आपको सर्वर भी मिलेगा, इसमें नेम सर्वर भी मिलेगा, सब डोमेन है तो वो भी मिलेगा। ठीक है, अगर वेबसाइट ने कुछ ब्लॉकेज कर रखी है वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को यहाँ पे और भी वेबसाइट्स के सर्वर्स मिले हैं, देखो वही सेम है, बट यहाँ पे मेथोडोलॉजी थोड़ी दूसरी यूज हुई है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको आउटलुक का मेल सर्वर की इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटलुक प्रोटेक्शन का मेल आ गया। इसके बाद और नीचे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो इसके जो जोन ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड आल्सो कंसीडर्ड अंडर वल्नरेबिलिटी, अगर आपके ट्रांसफर होते हैं तो वल्नरेबिलिटी के अंदर आता है। ये करप्ट हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली निकला नहीं। अब ये ब्रूट फोर्स करता है कि मतलब इसके यूजर्स के अंदर और इसके वेबसाइट के अंदर क्या ऐसी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जिस बेस पे आप एंट्री कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स। तो उस पे चेकआउट कर रहा है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या क्या यूज किया काली लिनक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, हमने बेसिकली NS लुकअप यूज कर सकते हो आप। NS लुकअप नॉर्मल टूल है नेटवर्किंग का। इसके अलावा आप डिग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, DNS enum का कर सकते हो। ये हमारा बेसिक मेथोडोलॉजी है। ठीक है, अब एक आपका एक कॉमन जो होता है यूज करने का, वो है हमारा हु इज लुकअप। काली के अंदर भी है, और आपको अगर काली प्रॉपरली यूज नहीं करनी आती तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो हु इज लुकअप करने की बहुत वेबसाइट है, ये ICANN की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो हमें पोर्ट नंबर और ये ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइड करती है ICANN। ठीक है, एक ही रहा हु इज लुकअप। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, huislookup.com करोगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने को डोमेन डालना है, तो अपने पास बहुत डोमेन है ऑलरेडी, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पुट करते हैं। इसमें आप वो भी डाल सकते हो, IP एड्रेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट वेबसाइट है तो ये आपको कैप्चा फिल करने की बोलेगी। ठीक है, तो देखो अब अपने को यहाँ पे बहुत डिटेल मिल गई। देखो यहाँ पे हमें TVC इंडिया के बारे में पता लगा, कहाँ पे होस्ट है, GoDaddy पे होस्ट है, क्या है, LLC है, ठीक है, स्मॉल कंपनी है। इसके बाद और चलते हैं नीचे। सो देखो अब ये वेबसाइट कब होस्ट हुई, एक्सपायर कब होगी, तो ये हमें सारी डिटेल यहाँ से पता लग जाएगी। GoDaddy है, ठीक है, उसकी मेल ID है जहां से हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहाँ वेबसाइट है, दिल्ली में है, अच्छा किस चीज से रिलेटेड वेबसाइट है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो जो उसकी वेबसाइट पे होस्टिंग हुआ। तो ये क्या होता है, ये क्यों आती है इन्फॉर्मेशन, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम जब वेब सर्वर होस्ट करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं लेते, तो वो प्रोटेक्शन यहाँ से लीक हो जाती है और आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, किसने लिखा है व्हाट वेब टूल सर। ओके, सो व्हाट वेब टूल भी यूज कर सकते हैं हम। व्हाट वेब के केस में देखो ये आ गया, इसका ब्रूट फोर्स करने के बाद africa.met.edu, मतलब इसका फ्रेंचाइजी है बाहर, तो उसकी भी डिटेल यहाँ से आपको मिल गई। ओके, अब जो व्हाट वेब बोला काफी यूजफुल टूल है वो। ठीक है, व्हाट वेब आपको लिखना है बस वेबसाइट का नाम met.edu। व्हाट वेब आपको एग्जैक्टली दिखा देगा किस वेबसाइट कहाँ पे होस्ट हो रही, मतलब क्या बैकएंड में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या इसके अंदर स्क्रिप्ट्स यूज की गई हैं, किस पर्पस के लिए वेबसाइट है, कौन सा सर्वर है, ये सारी डिटेल आपको गैदर करके बता देता है व्हाट वेब। ओके, तो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो सी दिस, तो हमने पुट किया तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली। फर्स्ट थिंग दैट यहाँ पे 301 का एरर आया है, जो कि HTTP
स्टेटस कोड होता है, तो इनका पर्टिकुलर यूज होता है 200, 300, 400, 500। अगर 200 आ जाता है तो इसका मतलब वेबसाइट प्रॉपरली ओके रिपोर्ट है उसकी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में मतलब होस्टिंग ले रखी है इसकी। HTTP सर्वर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का IIS है 10.0, इसका मतलब हमें पता लग जाएगा यहाँ से। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का IIS 10.0 है। इसके बाद वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है, दैट मीन्स 301 का मतलब होता है वेबसाइट रीडायरेक्शन। और ये कहाँ पे हो रही है, HTTPS पे, जो कि हमने लगाया नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं तो ये वेबसाइट ASP.NET के ऊपर पावर्ड है, मतलब यहाँ से इसको पावर्ड ये डॉक्यूमेंट मूव हो रहे हैं इसके। ठीक है, 200 ओके आ गया। नेक्स्ट, बिकॉज HTTPS के ऊपर है। इसके अंदर इस गूगल एनालिटिका यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन चीज जो निकल के आई, दैट इज कॉल्ड गूगल एनालिटिका। इस बेस पे क्या कर सकते हैं हम, इस गूगल एनालिटिका के बेस पे हम एग्जैक्टली अगर ये ओके हुआ और कहीं ना कहीं इसकी कुछ लीकेज हुई, तो इस बेस पे हम उसका सी नेम वगैरह रिकवर कर सकते हैं अगर हमें, और इसका ये चेक कर सकते हैं कितने लोग विजिट करते हैं। गूगल एनालिटिका बेसिकली इसलिए होता है। ठीक है, HTTP सर्वर अगेन सेम स्क्रिप्ट, कहाँ क्या यूज हुई है। अच्छा, अब एक चीज आपने देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, मतलब ये नोएडा में भी इसकी एक ब्रांच है। ये तो था कॉमन। अब हम करते हैं एक्सटेंसिव और एग्रेसिव स्कैनिंग, दैट्स और काइंड ऑफ एनुमरेशन पार्ट। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसके लिए हम एक इंटेलिजेंस टूल यूज करते हैं। ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस वाले अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेस रूट भी यूज कर सकते हो, यस यू कैन यूज ट्रेस रूट, जिसको हम ट्रेसर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस रूट, और यहाँ पे आप डाल सकते हो met.edu। तो एग्जैक्टली किन किन डोमेन से होते हुए, किन किन IP एड्रेस से होते हुए जा रही है वेबसाइट, आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। तो फर्स्ट इज माई गेटवे, यहाँ पे आपको 30 ऑप्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, यू कैन यूज दैट ऑल्सो गुड। मैंने कैंसिल कर दिया है। नाउ अब करते हैं हम एग्रेसिव एनुमरेशन और काइंड ऑफ स्कैनिंग। तो हमें देखो क्या करना है, हम एक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमिट्री टूल। ओके, डिमिट्री, डीप मैजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे को ये ऑलरेडी आता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ WinSPB। ठीक है, WINSPB का मतलब होता है, आई का मतलब आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, W का मतलब हुईस, N का मतलब नेटक्राफ्ट। ठीक है, जो आपका होता है। इसके बाद S का मतलब सब डोमेन, P का मतलब पोर्ट, और B का ना मतलब बैनर ग्रैबिंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखना मैं क्या एक्सप्लॉइटेशन पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहले आपको नेटक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन देगा, हुईस लुकअप देगा, देन इसके बाद हो सका तो आपको ये यूजर्स भी बता सकता है कौन कौन है। ठीक है, पोर्ट कौन कौन सी ओपन है ये आपको बता देगा। ठीक है, पोर्ट के लिए आप nmap बेस्ट है जो यूज किया जा सकता है। ठीक है, अभी जस्ट सोइंग। सो देखते हैं हमें क्या मिला एग्जैक्टली। इसको हम किसी फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम वो यूज करके फाइल का -o करके। सो देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले IP एड्रेस मिला, इसके बाद होस्ट नेम है अपने पास। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो आईकैन है उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, एशिया अफ्रीका ये चीजें। ठीक है, इसके बाद और नीचे चलते हो तो आपको इसकी एग्जैक्ट जो चीजें हमें चाहिए वो मिल गई, सी दिस। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेंट कौन है, एमिटी बिजनेस स्कूल। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस, और इवन उसकी डिटेल भी आ गई, कहाँ पे रहते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद अमित अतुल चौहान है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कांटेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे है, डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। ठीक है, उनकी ईमेल आईडी भी आ गई, जो कि इनफ है सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर कुछ भी उनको वो करने के लिए इनफ है। तो ये चीजें उन्होंने इसलिए सिक्योर नहीं करी, मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ सिक्योरिटी राइट्स नहीं ले रखे, जिस वजह से ये चीजें रिवील हो रही है। इसके बाद आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक और चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड AKC डेटा सिस्टम्स को भी मैनेज करते हैं लोग, टेक्निकल जो इनकी डिटेल आई है। इसके बाद नेम सर्वर जो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे नॉर्मल स्कैनिंग में, वो आपको मिल गया। ओके, आई जस्ट डिफाइन WinSPB, डोंट वरी। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाती है कि डोमेन कब रिकॉर्ड हुआ और लास्ट कब अपडेट हुआ। इस बेस पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये 2022 को जो है 2022 के अंदर 31 जुलाई अगर आप ये अपडेट नहीं करते इसको, तो आप अगर नेक्स्ट डे आप इसको परचेज कर सकते हो, और इस बेस पे आप उसको हाई अमाउंट भी डिमांड कर सकते हो कि मेरा डोमेन है, बिकॉज डोमेन के ऊपर किसी का कोई वो नहीं होता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता, जब तक रजिस्टर्ड है तब तक वो उसका है।
ठीक है, क्योंकि गोड आईडी वगैरह अमेजोन वाले उसको प्रॉपरली फिक्स टाइम के लिए रखते हैं, आप उसको पे करना पड़ता है उस चीज के लिए, तो कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये सब डोमेन है। सब डोमेन मतलब इस डोमेन से पहले जो चीज आ रही है दैट सब डोमेन, मतलब इसी का पार्ट। तो देखो अब कॉमनली हमें जो वेबसाइट मिली थी वो तो met.edu की थी, बट हमें देखो यहाँ पे AAUP मिली है, ADOUE है, ठीक है, ग्वालियर की वेबसाइट है ये, ठीक है, ये दूसरे जगह की है। अब ये पोर्ट स्कैनिंग का पार्ट चल रहा है अभी, ठीक है, तो दैट कंसिस्ट अवर अंडर अवर स्कैनिंग पार्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अवर द मेन पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्कैनिंग पार्ट, जो कि मेन एनमैप है। ठीक है, एनमैप के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको विन एसपीबी का मतलब बता देता हूं। ठीक है, सो 80 पोर्ट ओपन है। ठीक है, इसको हम रियल नहीं मानेंगे बिकॉज हो सकता है इसके अंदर फंक्शनलिटी यूज ना हो, तो हम अपनी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है, अपनी मेथोडोलॉजी क्या है, एनमैप। पहले मैं आपको विन एसपीबी बता देता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैन और डिमिट्री। ओके, जब मैं ये मैन करता हूं, इसकी मैनुअल निकालता हूं, ये हर टूल की मैनुअल होती है। ठीक है, तो डब्ल्यू का मतलब होता है हु इज लुकअप, जो भी राइट डाउन करना है लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू मींस हु इज लुकअप, आई मींस इंटरनेट नंबर, जिसको मतलब टारगेट आईपी एड्रेस बोलते हैं हम। ठीक है, एन का मतलब नेटक्राफ्ट और एस का मतलब सब डोमेन। ठीक है, पी का मतलब पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट जो आपका पोर्ट नंबर है, पोर्ट्स हैं वो। ई का मतलब ईमेल एड्रेस जो कि हमें मिली है। ठीक है, ई का मतलब ईमेल जो कि हमने यूज नहीं किया था, विन एसपीबी ई भी कर सकते थे हम। ठीक है, ये चीजें। एफ का मतलब फायरवॉल लगा है कि नहीं वो चेक करने के लिए, बहुत यूजफुल टूल है ये हमारा, काइंडली यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, और इंटेलिजेंस भी इसको यूज करती है। ठीक है, तो ये तरीका था नॉर्मली। आई होप यू अंडरस्टैंड अतिष्का गुप्ता। यस। ओके ओके गुड। सो अब करते हैं हम एक्सप्लॉइटेशन पार्ट। तो एक्सप्लॉइटेशन पार्ट पे हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो देखो, जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के, तो यहाँ पे कॉमिक्स टूल है जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। स्किप फिश है, एसक्यूएल मैप है, डब्ल्यूपी स्कैन है। ठीक है, डब्ल्यूपी स्कैन आपका वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए बहुत यूजफुल टूल है। ठीक है, जितनी वर्डप्रेस की वेबसाइट है सबको स्कैन कर सकते हो आप डब्ल्यूपी स्कैन के बेस पे। ठीक है, बट हमारे पास ऑलरेडी है एक वर्डप्रेस की वेबसाइट। बट एक ऐसा टूल जो कि हम अक्सर यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, तो वो हम एक निक्टो यूज कर सकते हैं। ठीक है, निक्टो के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है निक्टो। ठीक है, निक्टो। इसके बाद आपको यूज करना है हाइफन एच, मतलब जो भी वेबसाइट है met.edu, और वेट ए मिनट edu। ओके, ठीक है, तो अब ये हमने जो यूज किया है, अब देखो जो हमने चीज निकली थी वो यहीं पे पता लग जाएगी। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट इसके अंदर एक्सेस प्रोटेक्शन हेडर नॉट डिफाइंड, तो मे बी द चांसेस ऑफ एक्सेस इज देयर। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली WF लगा हुआ है इसके ऊपर। WF का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, जो कि IAS ने लगा रखा है। सो लोड बैलेंसर भी इसके अंदर है, मतलब आप वेबसाइट पे डीडोस अटैक करते हो तो वो आपको पता लग जाएगा। अब इस वेबसाइट को हम स्कैन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज द ऑफेंसिव मेथोडोलॉजी, अटैकिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं हम इसको। तो हमारे पास कौन सी वेबसाइट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, या तो आप मेरी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो, हैक इन 5 मिनट। ठीक है, या वो तो मैंने सिक्योर कर रखी है, तो उस बेस पे आप अटैक नहीं कर पाओगे। बट हम एक ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जिसपे हम अटैक कर पाए। ठीक है, तो आई जस्ट राइट डाउन हियर nikto-h testphp.vulnweb.com. Okay, when I click here, so I got same information like this. So but one thing is different, that is it shows that nginx server is there also. It works on php 5.6। और इसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है, दैट्स ubuntu debian। तो आपको पता ही है ubuntu के ऊपर रन हो रही है। ठीक है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। एंटी क्लिक जैकिंग, मतलब इसके अंदर एंटी क्लिक जैकिंग प्रेजेंट नहीं है, तो क्लिक जैकिंग अटैक भी हो सकता है। एक्सेस प्रोटेक्शन नॉट अनेबल, इसका मतलब एक्सेस भी हो सकता है। ओके, अभी अभी फिलहाल इतनी चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या सच में ही हो सकता है या ये फिर ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, कहाँ पे गई, ये रही। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, एक्सेस के लिए आपको सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, दैट इज द सर्च बार। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H1 मीन्स हेडिंग 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया यू हैव बीन हैक्ड बाई हैकर चौधरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने हेड 1 बंद कर दिया। ये मेन मेथोडोलॉजी है किसी वेबसाइट पे एक्सेस चेक करने के लिए। अगर आपको ये शो हो गया, दैट मीन्स कुछ भी शो हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये आ गया, यू हैव बीन हैक्ड बाय हैकर चौधरी।
ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। ओके, नो सॉरी, सोर्स कोड पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। अब आपको फाइंड आउट करना है, राइट क्लिक करके सोर्स कोड में हैकर चौधरी, ठीक है, क्योंकि कॉमन वर्ड है हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गया। अब ये कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, div id इक्वल टू कंटेंट, मतलब कंटेंट के अंदर है ये, और यहाँ पे कंटेंट एंड हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब ये रिफ्लेक्ट हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये सच में एक्सेस के लायक है कि नहीं। तो जहां पे आपको HTML इंजेक्शन मिल जाए, इसको HTML इंजेक्शन बोलते हैं बेसिकली। अब ये कैसे इसको एक्सप्लोइट करेंगे, तो सी आई शो यू हाउ वी कैन डू एक्सप्लोइटेशन पार्ट। तो जब नॉर्मली मेरी वेबसाइट को मैं विजिट करता हूँ hackin5minute.com, वेट आ रहा हूँ, बस वेट। ओके ओके, सो बेसिकली ये वेबसाइट है, और ये वेबसाइट लोड हो रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना डेंजरस हो सकता है आपके उसके बेस पे। सो अलग अलग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मेथोडोलॉजी होती है, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, डोम बेस्ड होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, तो अभी उसका हम थोड़ा सा देखेंगे। सो ये वेबसाइट लोड हो गई है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे इसका मैं सोर्स कोड निकालता हूँ, ओके, और इस सोर्स कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, एंड आई जस्ट पेस्ट इनटू दैट, ओके, वेयर, हियर। सो देखना, व्हेन आई पेस्ट हियर एंड क्लिक गो, तो पहली चीज तो वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, माई हैक इन 5 मिनट इनटू टेस्ट PHP, सी, और ये अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम, बिकॉज मेरी वेबसाइट है वो डायनेमिक है। ठीक है, तो ये अपडेट होगी टाइम टू टाइम। अब इसी बेस पे मैं यहाँ से URL रीडायरेक्शन भी कर सकता हूँ, जहां से मेरे को फ्री की ट्रैफिक मिल जाएगी। ठीक है, इसी बेस पे मैं क्लिक जैकिंग कर सकता हूं, जो ये क्लिक जैकिंग का ही पार्ट है बेसिकली ये। अब इसको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, तो देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए आपको फंक्शनलिटी आनी चाहिए। ठीक है, या मैं यहाँ पे मार्क्यू बेस पे मैं इस वेबसाइट पे डिफेस भी कर सकता हूँ। लॉट्स ऑफ मेथोडोलॉजी आर देयर। तो ये वेबसाइट इन्फेक्ट कर दी हमने इनडायरेक्टली। तो ये जो वेलकम टू अवर वर्ल्ड जो आपको आ रहा है, ये मेरी वेबसाइट पे था, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा था। गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, SQL इंजेक्शन देखते हैं, मैंने बताया कैसे पता लगा SQL इंजेक्शन। ठीक है, टेस्ट इज इक्वल टू क्वेरी में मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको बेसिकली। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आपको स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट ओपन की मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दूंगा बीच में। ठीक है, इसके बीच में हमें फंक्शन डालना है। जब मैं यहाँ पे फंक्शन डाल देता हूँ, अलर्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कोमा, बिकॉज अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच में लिख देंगे हैक्ड बाय मी, जो कि कॉमन लोग लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। एंटर, ओके। सो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी आया है, बट ये प्लगइन मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो इस बेस पे क्या आ रहा है, फ्लैश वाज ब्लॉक्ड इन दिस पेज। सो या तो मेरे को फ्लैश ऑन करना पड़ेगा, या फिर हम इसको उस पे देख सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर, उसके अंदर इजिली दिखता है। ओके, रिलोड करते हैं फिर से। या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आपको यहाँ पे सर्च बार में डालना है। ठीक है, एंटर, जस्ट एक मिनट, स्क्रिप्ट, लेट मी चेक। ओके, गुड। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, मान ले फिर से वो ना हो। अब हमने इसको अनेबल कर दिया फ्लैश को, तो देखो हैक्ड बाय मी, ये दिस इज नॉर्मली रिफ्लेक्शन। अगर मैं चाहूं तो इसमें स्टोर बेस कर दूंगा, तो वो आपके सर्वर पे भी अटैक कर सकता है, जिस बेस पे हम कुकीज भी चुरा सकते हैं SQL इंजेक्शन, सॉरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। ठीक है, अब SQL इंजेक्शन का जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि SQL इंजेक्शन है, कैसे पता लगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्वेरी के अंदर कोट्स लगा दिया था। ठीक है, तो उसी बेस पे पता लग गया। चेक करते हैं क्या रियल में SQL इंजेक्शन है। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज देयर, सो दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ SQL इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका यूजर नेम है टेस्ट, और पासवर्ड भी टेस्ट है। ठीक है, तो हम वो यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कोट और 1 इज इक्वल टू 1। मतलब हम यहाँ पे एक फंक्शन डाल रहे हैं जिसकी वैल्यू ट्रू डाल दी हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ SQL इंजेक्शन। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अगर ये इसके अंदर SQL इंजेक्शन हुआ, तो ये आपका वेबसाइट बाईपास कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन बाईपास। ठीक है, तो देखो सी दिस, आई गॉट द नेम हियर,
आई गोट क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी अपडेट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज पुट कर देता हूँ और उसको अपडेट कर दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ओके अपडेट, तो सी दिस पवन हियर, ओके, और ये रिफ्लेक्ट हो चुका क्योंकि ऑलरेडी इसमें HTML इंजेक्शन पहले ही है। अब देखो हम इसको फिर से लॉग आउट करते हैं और फिर से एक बार यहाँ से कुकी पॉइजनिंग भी कर सकते हैं, हम कुकीज चुरा सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ऑलरेडी वल्नरेबल है ये। और फिर से लॉगिन करते हैं, ये किसी भी वेबसाइट पे हो सकता है जिसमें SQL की आपको नॉर्मल वल्नरेबिलिटी मिलेगी। तो देखो ये स्टोर्ड हो चुकी चीज जो हमने पुट की थी। अब इसी को चेक करने के लिए हम, अगर हमें इसको एग्रेसिवली चेक करना है तो इसके अंदर SQL ऑलरेडी है, तो हम मैनुअल मेथोडोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। निकटो के अंदर भी हमें वो मिल गया होगा, आई थिंक सो, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत चीज पता लग गई हमें, index.php भी इसका शो हो रहा है। ठीक है, CVS जो एंटिटीज हैं वो भी इसकी शो हो रही है, डायरेक्टरी लिस्टिंग वल्नरेबिलिटी भी है। ठीक है, MySQL का जो डेटाबेस है वो भी फाउंड हुआ। ठीक है, 1.0 के ऊपर वर्क कर रही है। इसके बाद RFC जो हमारा वो है उसका हेडर शो हो रहा है। इसके बाद देखो क्रॉस डोमेन XML वो भी इसके अंदर है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली हुई है। अब ये चीजें कैसे पता लगेंगी, क्या होती हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा तभी आप जान सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टडी कर सकते हो इनके बारे में और कैसे इन चीजों के बारे में जान सकते हो, इसके लिए आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, तो ये नॉर्मल मेथोडोलॉजी थी। एग्रेसिवली हम क्या कर सकते हैं, एग्रेसिवली हम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन पे, और ये एक काफी यूजफुल टूल है दैट इज कॉल्ड बर्बशूट, और ये सबसे मतलब हेड है, ये हर चीज का एडवांस लेवल टूल है। ये आप बग बाउंटी हंटर्स भी यूज करते हैं इसको सबसे ज्यादा, और वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, document.cookie भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, नो इशू। इसके लिए आपको थोड़ा सेटअप करना पड़ता है जो कि बहुत सबको लंबा प्रोसीजर लगता है बट बहुत इजी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है फायरफॉक्स के ऊपर। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी प्रो वर्जन भी है बट ये कम्युनिटी एडिशन में काली में चला रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे यूज करना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रो के अंदर हमें प्रो लेना है, ये लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एडवांस बग बाउंटी हंटर हो या प्रो लेवल के हो तो ही आप प्रो लो, वरना सारे काम उसी में होते हैं। यस सैम, ये बेसिकली है अच्छा टूल है। सो यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंस के अंदर, ओके, और आपको यहाँ पे लिखना है XY दैट मींस प्रॉक्सी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो नो प्रॉक्सी आपको मैनुअली सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैंने कोई प्रॉक्सी चलाई थी तो उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, नॉर्मली कौन सी प्रॉक्सी होती है, लोकल होस्ट 127.0.0.0.1। ओके, ये 36,525 को 80 कर दो। ठीक है, जितने भी हैं सबको चेंज कर दो। ठीक है, सोक 5 यूज करेंगे हम, और यहाँ से ये जो नो लोकल होस्ट है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, एंड देन ओके। ठीक है, अब हमारा बर्बशूट बैकएंड में चल रहा है और हमने यहाँ पे भी रेडी कर लिया। तो व्हेन वी ओपन द बर्बशूट काइंड थिंग, सो क्लोज। ठीक है, हमें अभी अपडेट नहीं करना इसको, तो देखते हैं बर्बशूट ये रहा। सो सबसे पहले आपको टेम्पररी प्रोजेक्ट पे करना है नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद यूज बर्बशूट, यस, ओके स्टार्ट। सो स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम कॉमन वेबसाइट लेते हैं, टेस्ट PHP वाली जो मैंने आपको दिखाया था अभी। हम किसी वेबसाइट पर अटैक नहीं कर सकते बिना प्रायर अथॉरिटी के। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई चीज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है टेस्टिंग वेबसाइट को लेके चलिए। और मैं तो ऑलरेडी आपको लाइव करा रहा हूँ तो मैं ऐसे करा नहीं सकता आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो ये हमारा ऑन हो गया। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है सर हमारी जो रिक्वेस्ट हो इंटरसेप्ट नहीं ले रहा, तो उसका रीजन ये है कि भाई आपने यहाँ पे जाके ऑप्शंस में जाके प्रॉक्सी को टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा तो रेगुलर इस पे यूज है तो ये ऑलरेडी टिक है। अब आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट पे जाना है और यहाँ पे टेस्ट PHP ऑलरेडी आ गया। अब यही वल्नरेबिलिटी मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो सी दिस, आपको यहाँ पे जाना है। अब इसमें क्या होता है, बर्बशूट आपकी इंटरसेप्ट करता है, रिक्वेस्ट को रोक लेता है बीच में ही, आप तक पहुंच नहीं देता, पहले खुद के पास लेता है देन आपको भेजता है। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है गेट मेथोडोलॉजी है। ठीक है, हमें अभी कुछ नहीं करना, बैक फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आया रेस्पॉन्स। तो देखो हम उसी वेबसाइट पे पहुंच गए जो हमने नॉर्मल ब्राउजर में ओपन की थी। अब इस पर अटैक कैसे करेंगे SQL इंजेक्शन का या इसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, तो देखो कॉमनली क्या होता है जब मैं कहीं पे विजिट करता हूँ प्रॉपरली, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ पवन गो, अपनी अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हो, उसमें फंक्शन होता है, आप अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो ऑलरेडी दिख जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ID रेंज आई
और ये कैटेगरी डॉट php आया, मतलब पहुंच रहे हैं हम अभी ये, ठीक है। फॉरवर्ड, जब वहां से उसको रेस्पॉन्स मिल जाएगा तो अपने को यहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो ये पोस्टर्स वाला आ गया, अपने को पवन लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। अब की बार गो, तो ये वेबशूट ने रिक्वेस्ट उठा ली, इसलिए बीच में आपको ये हाईलाइट हुआ। सो व्हेन यू सी दिस, यहाँ पे पवन आपको दिख रहा है, गॉट इट। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। अब इसको हम पेलोड बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पवन क्या है, एक्चुअली क्वेरी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, रिक्वेस्ट टू द ब्राउजर करेंगे तो हम इसका ओरिजिनल सेशन उठा लेंगे। हमें क्या करना है, इंट्रूडर के पास भेजना है या डायरेक्ट रिपीटर के पास भी भेज सकते हैं। रिपीटर पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हमें कैसा रेस्पॉन्स देखना है, या क्लिक करेंगे रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे पवन को सर्च करूंगा तो देखना पवन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। हो गया हाईलाइट, इसका मतलब सर्च बार में है पवन। ओके, नाउ चलते हैं इंट्रूडर के पास। इंट्रूडर में क्या हो सकता है, हम यहाँ पे अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अटैक दिखेगा, इससे पहले आपको पोजिशनिंग सेट करनी पड़ेगी। तो ये पवन है। अब क्या करता हूं, मैं इसको पेलोड ऐड करता हूं, ठीक है। जितने आपको क्वेरी दिख रही है ये सारे पेलोड्स हैं फिलहाल, ठीक है। तो आपको इसको क्लियर कर देना है, ठीक है, और सेलेक्ट करना है जो आपको अटैक, जो आपको शो करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे अटैक टाइप है, स्निपर है, और ये स्नाइपर है, क्लस्टर बॉम्ब है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं नेक्स्ट, पेलोड पे जाते हैं। ओके, पेलोड पार्ट पे आपको, या तो आपके पास अगर लिस्ट है अच्छी तो आप लोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्रॉस एक्सेसेस की लिस्ट होगी, तो आप यूज कर सकते हो। एक काफी अच्छी है, पे ऑल पेलोड्स करके एक डायरेक्टरी, उसका यूज कर सकते हो। चाहे तो आप अपना अलग से भी डाल सकते हो, ठीक है। तो AI ऑल पेलोड्स ये मिल गया आपको। पेलोड्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप पुट करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेसेस की या कोई भी। अगर आपको नॉर्मली 1-1 डालने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 1-to-1 करना है तो आपको स्क्रिप्ट ऑफ, ठीक है, अलर्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब की बार मैं वो यूज करता हूँ नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 5, देन इसके बाद सेमीकोलन, इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज। तो ये मैंने नॉर्मली एक डाला है, ठीक है। आप ऐसे मल्टीपल डाल सकते हो, एक्चुअली ये मल्टीपल यूसेज के लिए होता है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक पुट किया है, ठीक है। अभी हमने सिंपल पेलोड सेट कर लिया। यहाँ पे आप डबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पेलोड सेट भी लगा सकते हो। इसके बाद ऑप्शंस पे जाना है और आपको डायरेक्ट अटैक कर देना है, ठीक है। जब ये अटैक करोगे तो आपसे पूछेगा, ओके कर देना, नो इश्यू। और देन इसके बाद 200 ओके मिल गया। 200 ओके मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 200 मीन्स कि आपको वहां से रेस्पॉन्स ओके का मिल गया। तो आप जब इसको रेंडर करके देखते हो तो यहाँ पे आपको चीज शो हो जाती है, ठीक है। क्लिक टू रेंडर पेज। ओके, नाउ वी फर्स्ट चेक आउट अवर ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा मे बी, क्योंकि लोडिंग में है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ओके, रेंडर हो रहा है। देखो अब ये आपको ऐसा पेज दिखा है। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो एक्सप्लॉइट के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इंट्रूडर में आप ऑलरेडी थे, ठीक है। एक और आपका जो खुला था उस पर क्लिक करना है आपको, ये खुला हुआ है आपका, ठीक है। इसको रेस्पॉन्डर को हटा देते हैं यहाँ से। वेट ए मिनट, जस्ट ये है। सो स्टार्ट अटैक, व्हेन यू क्लिक हियर, ये आ गया, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो रेस्पॉन्स इन ब्राउजर, ये जो हमारा है ये तभी वर्क करेगा, ये लिंक आपका जब आपका बबशूट ओपन होगा, ठीक है। इसको ओपन कर लिया हमने। अब चाहे तो बबशूट को ऑफ भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट हम अभी ऑफ नहीं करेंगे बिकॉज हम और चीजें देखेंगे इसमें, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट करना है आपको और ये चीज आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो व्हेन यू क्लिक हियर यू गॉट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, अब मैं यहाँ से रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस पे ओके कर दूं तो मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट भी हो जाए। उसके लिए हमें URL रीडायरेक्शन लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैंने यहाँ पे ओके किया, तो देन यू गॉट द पॉपअप ऑफ दैट वेबसाइट। रिलोड करते ही फिर से आपको वो चीज शो हो जाएगी। ओके, so that's our reflected cross-site scripting, that's the part of your one of the critical vulnerability. okay, so ये था हमारा critical vulnerability का पार्ट। nmap देखते हैं, बैकएंड में चल ही रहा है हमारा। so अब बबशूट में आपको और चीज दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं टारगेट के अंदर। so proxy को हम फिलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं, ठीक है।
इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया, टारगेट। अब देखो यहाँ पे बहुत चीज मिलती है, देखो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ से भी आप ऑलरेडी पता कर सकते हो। तो यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ से डायरेक्टरी भी मिलेगी, लिस्टिंग भी मिलेगी। तो देखो जिन पे टिक लग रहा है ये सारी आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से आपकी वो हो सकती है, एक्सप्लॉइट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप और भी चीजें देख सकते हो, यूजर इन्फो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। इसके बाद अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको एग्जैक्टली वेबसाइट के अंदर कैसे कैसे वेबसाइट बनी हुई है, क्या क्या सिंटेक्स यूज हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता लग जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट जो हमने छोड़ा था पीछे, देखते हैं उस पर क्या रेस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो हमने बहुत चीजें खोल के रखी हुई है, ये आ गया। सो वन ऑफ द बेस्ट टूल टू फाइंड आउट अबाउट एग्जैक्ट थिंग, और हमें एग्जैक्ट पोर्ट वगैरह पता लगाने के लिए एक nmap है जो कि हम कॉमनली यूज करते ही हैं। ठीक है, nmap के अलावा एक और एडवांस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हेन आई क्लिक हियर nmap, दिस इज द बेसिक कमांड। इसके अलावा आप nsc स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, जहां से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो किसी वेबसाइट के एसक्यूएल के अंदर, या फिर कोई और चीज आपको एक्सेस करनी है, ब्रूट फोर्स कर सकते हो nsc स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 80 पोर्ट ओपन है जो कि हमें नॉर्मली मिला। ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी का चेक करते हैं, -a यूज करो एग्रेसिव उसका चेक करने के लिए। ठीक है, met.edu एंटर। nmap की आपको पूरी चीट शीट भी मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे। ये जो चीट शीट वर्ड है ना, बहुत यूजफुल है, आपको हर चीज पे मतलब हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूं, तो आई गोट द चीट शीट। पीडीएफ के अंदर है। सम नेटवर्क इशू में भी, नो प्रॉब्लम। बेसिकली आप ये डाउनलोड कर सकते हो एंटर करके। ठीक है, या तो आप यहाँ से इमेजेस पे जाके भी देख सकते हो, तो मल्टीपल चीट शीट्स आर देयर। तो देखो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा, जिसे आप, ये सांस की ऑफिशियल चीट शीट है। सांस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, GCIAC जैसे बड़े बड़े सर्टिफिकेशन। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी, आप चीट शीट का यूज कर सकते हो। अगर आपको माइंड में है तो नो वरी, आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉमन जो कमांड है आपकी, वो आप -a यूज कर सकते हो एग्रेसिव स्कैन के लिए, और पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम ये चीजें हेल्प ले सकते हैं इन चीजों की। एक जो बेस्ट टूल मैं बताया था, दैट इज कॉल्ड स्पार्टा। ओके, इसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी, आपको पोर्ट भी पता लग जाएगा, आपको कौन सी वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में चल रहा है, ये सारी चीजें पता लग जाएगी। आपको स्पार्टा करके एंटर करना है जस्ट, और ये आपको पता लग जाएगा। अभी जो रिसेंटली नया है वो हमारा लीजियन नाम से उस टूल का नाम। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा स्पार्टा टूल। ये रेड टीमिंग के अंदर बहुत यूज होता है, जो नेटवर्किंग पेन टेस्टिंग करते हैं उस केस के। तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट स्कैन पे जाके क्लिक कर देना है होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको आईपी रेंज मांगता है। तो इस केस में आपको आईपी एड्रेस देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो met.edu डायरेक्ट, तो आपका होस्ट में ऐड हो जाता है चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे nmap बैकएंड में चलेगा, इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके टूल है वो चलेगा, इसके बाद इसमें ZenMap चलेगा। ये सारे नेटवर्क स्कैनिंग टूल होते हैं, तो इस बेस पे आपकी ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें अगर आप आईपी एड्रेस की अप्रोच रखते हो तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो देखो ये स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद है हमारा ये निक्टो वल्नरेबिलिटी स्कैनर के बेस में यूज कर सकते हो, और वल्नरेबिलिटी स्कैनर वेपिथ यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप बर्प शूट यूज कर सकते हो जो बेस्ट है। nmap की nsc स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेब वल्नरेबिलिटी के केस में क्या होता है, हमारे ओपन पोर्ट्स भी एक वेब वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा था सर? स्पार्टा, SPARTA। यस, स्पार्टा, दैट्स द स्पार्टा।
बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान रखना ये टाइम कंज्यूमिंग है। बट यहाँ से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी एग्जैक्ट, अभी ये एक्चुअली प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एमआईटी यूनिवर्सिटी वेबसाइट ने कुछ शो नहीं कर रखा, पोर्ट भी उसके कम ही निकले थे, तो उस बेस पे देखते हैं इसको फिर से रन करके। स्पार्टा, ठीक है, जेन मैप भी यूज कर सकते हो अगर आपको ग्राफिकली देखना है चीजों को। यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल के देखते हैं पहले, तो हम टेस्ट पीएचपी ले लेते हैं। पिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे को आईपी मिल गया, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं डायरेक्ट। ओके, नाउ स्पार्टा पे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और देन इसके बाद देखो ये आ रहा है, आपको जो भी टिक लगाना है लगा दो, एनमैप भी निकालना है आपको जो भी। इसमें थोड़ा फास्ट प्रोसीजर होगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। आईपी एड्रेस को पहले वो रिजोल्व कराता है, पहले होस्ट को रिजोल्व कराएगा आईपी में, देन आपको शो करेगा। इसमें डायरेक्ट आईपी डाल दिया तो उसको रिजोल्व कराने की नीड नहीं होती। देखो सी पोर्ट 80 ओपन, प्रोटोकॉल टीसीपी ओपन है, ठीक है, एचटीटीपी और एनजिंग सर्वर, गोट इट। इसके बाद हम सर्विसेज पे चलेंगे, तो देखो अभी हमें एचटीटीपी एक सर्विस मिल गई, देन इसके बाद टूल्स में चलते तो स्क्रीनशॉट ले लेगा पूरे वेबसाइट का, देखो दैट्स द गुड थिंग। यहाँ पे आपको मल्टीपल ये देखो वही निक्टो ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा है बैकएंड में, ठीक है, और ये वल्नरेबिलिटी इसने शो कर दी, तो इसलिए हम इसको रेड टीमिंग का और उसका उसमें बहुत यूज होता है आपका ये टूल। ओपन पोर्ट्स पे पेलोड कैसे लगा सके, देखो अगर एफटीपी ओपन है तो देखो अगर सपोज मेरे को कोई ओपन पोर्ट मिला, ठीक है, मेरे को उसको हैक करना है, तो वो जज एक लैब है उसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल लैब, उस पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, बट हर वेबसाइट पे कैसे करोगे उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टूल है उसका नाम है सर्च स्प्लॉइट, ओके, ये एक एक्सप्लॉइट चेक करने का है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एफटीपीडी, ठीक है, एफटीपीडी। जब आप एंटर करते हो सो यू सी दिस आर द एक्सप्लॉइट्स, और आपको पता है एक्सप्लॉइट वो होते हैं जो किसी वल्नरेबिलिटी के बेस पे अटैक करके उसको हम टेक ओवर कर सकते हैं। तो दिस आर द एक्सप्लॉइट, ये हमारा विंडोज का एक्सप्लॉइट है, लिनक्स का है, यूनिक्स का है, रिमोटली एक्सेस के लिए है, ये आरसी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के लिए है। तो देखो अब यहाँ पे आपको डीडोस अटैक करना है उस वेबसाइट पे, तो आप ये एक्सप्लॉइट यूज कर सकते हो। अब ये यूज कैसे करोगे, ये आपका मेटास्प्लॉइट से यूज कर सकते हो आप इसको, मेटास्प्लॉइट से, ठीक है, जो मैंने आपको पीपीटी में अभी दिखाऊंगा आगे मेटास्प्लॉइट के बेस पे। तो हाँ, ये वेबसाइट वल्नरेबिलिटी के बारे में बता रहा था। तो वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के दो तरीके हैं, पहला मैनुअल मेथोडोलॉजी और सेकंड ऑटोमेशन। मैनुअल भी मैंने आपको बता दिया और ऑटोमेशन भी बता दिया, ठीक है। ऑटोमेशन में आप नेट स्पार्कर जैसे एडवांस लेवल टूल यूज कर सकते हो, ठीक है, वेपथी जैसे वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज कर सकते हो, बबशूट जैसे एडवांस लेवल टूल यूज कर सकते हो, एक्यूनिटिक्स जैसे वेब पोर्टल कम टूल यूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें वल्नरेबिलिटी जो निकलती है टॉप लेवल की, जिसको हम ओवास्प की टॉप 10 बोलते हैं, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, दैट इज ओवास्प। इसमें हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस रिक्वेस्ट फोर्जरी जो हमारा है, क्रॉस और ऐसे सारे सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, ठीक है, एचटीएमएल इंजेक्शन, ये हमारी कॉमन वल्नरेबिलिटी होती है जिस बेस पे हम किसी वेबसाइट को टेक ओवर कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइटेशन दिख रहा है और यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है। तो एमएसएफ है, एमएसएफ मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ये आपको यहाँ पे पेलोड ऐड कर रखे, तो एफटीपीडी का ये एग्जांपल है। तो आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसके बाद ये वेबसाइट के बैकडोर बनाया इसने, उसके बाद इसने आईडी एक्सेस किया और फाइनली उसने शेल अपलोड किया और उसके बाद आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। अब इनमें से आप एक्सप्लॉइट यूज करोगे और उसको आप मेटास्प्लॉइट पे रन कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट रन करने का तरीका होता है एमएसएफ कंसोल राइट डाउन करो, ओके, और इससे आपका पूरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन हो जाएगा, और फिर आपको कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है, क्या यूज करना है, वो आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इज द वेरी यूजफुल टूल फॉर हैकिंग एंड्रॉइड फोन्स, मोबाइल्स, और इससे पहले एप्पल के फोन भी हैक हो जाते थे इससे, कैमरास, ठीक है, बहुत चीजें हैक कर सकते हो आप इससे। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और डायरेक्टली आप यहां से भी ओपन कर सकते हो इसको, यहाँ पे जाके ये रहा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 सेकंड, वरना ये भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसमें ये क्यों इतना यूजफुल और कितना कितना हेल्पफुल होता है, बिकॉज इसका रीजन ये है। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट, पीछे एंड हो चुकी सारी चीजें, तो वो भी हमारा हो गया ऑलमोस्ट।
सो स्पार्टा में अभी क्या मिला है अपने को, HTTP अभी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट मिल जाती है। ने ये किया, स्क्रीनशॉट ने ये किया। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता लग जाएगा कौन सा है इसका। Okay, got it? Yes, sir, we got it. Okay. So these are all the concept or the practical approach how you can do all the things. कंप्लीट करना है तो उस बेस पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या फिर आप किसी भी वर्कशॉप को ज्वाइन करके आप सीख सकते हो चीजें अच्छे तरीके से। So now is the question time. You can ask me any question from your side if you have any doubt.